میں شروع کر رہا ہوں اپنی ریلی اور اپنی ساری قوم کو ریلی شروع کرنے سے پہلے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج آپ جدھر بھی ہیں آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آج آپ اپنے آئین کے لیے، اپنے سپریم کورٹ اور اپنے چیف جسٹس کے لیے آپ آج اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ اور میں پھر سے ہی آپ کو پیغام اس لیے دے رہا ہوں اور 5:30 بجے آپ نے نکلنا ہے، 1 گھنٹے کے لیے صرف اپنی ٹائم نکالیں، کیونکہ اگر اس ملک کا آئین ختم ہو گیا اور وہ ہو جائے گا اگر سپریم کورٹ کا انہوں نے فیصلہ نہ مانا، جو انہوں نے گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا۔ جب آئین ختم ہوتا ہے ملک کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے، اس وقت قانون ختم ہو گیا، جنگل کا قانون آ گیا، اس کا مطلب کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا، آپ کے بچوں کا۔ اس لیے میں نکلنے سے پہلے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے خاطر آپ نے سب نے 1 گھنٹہ 5:30 بجے باہر نکل کے اور بتانا ہے کہ آپ چیف جسٹس اور آئین کے ساتھ کھڑے۔ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ میرے عقب میں آپ کو ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے، یہ بھی صرف تیاری ہے، اس کے بعد کچھ ہی دیر میں یہ ریلی نکلے گی۔ اس ریلی کا بنیادی مقصد اپنی عدلیہ کو یہ اعتماد دلوانا ہے کہ قوم، عوام، عام آدمی، غریب آدمی، حقدار آدمی آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے حکم پر اس ریلی کو ترتیب دیا ہے۔ یہ جمع غفیر ہے جو اپنی اعلیٰ عدلیہ کو یہ کانفیڈنس دینا چاہتی ہے کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کیجیے۔ غریب آدمی آپ کے ساتھ ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ الیکشنز کے ساتھ جڑتی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات ہوں، آئین ہو، قانون ہو، بہرحال یہ وقت الیکشن کا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جن حکومتوں کا کام الیکشن کروانا اور چلے جانا تھا وہ اپنے منصب پر براجمان ہو کر ٹکی ہو گئی ہیں۔ وفاق کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت بھی اس ضمن میں الیکشن کے معاملے میں کوئی زیادہ سیریس نظر نہیں آ رہی۔ ایک جانب مذاکرات چل رہے تھے، دوسری جانب گرفتاریاں اور مار دھاڑ چل رہی تھی۔ وہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہمیں ہوا میں اڑایا جاتا نظر آیا اور اس کے لیے کوئی خاطر خواہ تیاری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے اور ذمہ دار اداروں کی جانب سے نظر نہیں آئی ہے۔ ایز اے ریزلٹ پبلک سڑکوں پر ہے اور وہ اپنا حق مانگ رہی ہے۔ اس ریلی کو منسوخ جو کیا گیا ہے وہ ہے آئین بچاؤ ملک بچاؤ، یعنی آئین بچے گا تو ملک بچے گا۔ اور بلیو بھی یہی ہے، کیونکہ آئین وہ مقدس دستاویزات میں سے ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان ایک بانڈ ہے، ایک MOU ہے، اور سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یہی ہیں کہ بھائی 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ انفارچونیٹ سچویشن ہے، لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ عوام نکل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ریپورٹڈلی ایک سیٹ بیک ضرور ہے کہ جو اسٹرینتھ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ تقسیم کرنے سے پہلے تھی وہ obviously اس طریقے سے نہیں ہوگی، کیونکہ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ان سے ناراضگیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی کہانی، عام آدمی کی زبانی۔ ملک ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور obviously اس ریلی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ پسینوں پسینے ہوئے پے ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، جب پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر لڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پسینہ ہو، مقصد کیا آج کی ریلی کا؟ آج کی ریلی کا مقصد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کال دی ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کی آل اوور پاکستان، ہم نے سپریم کورٹ کے ڈیسیژنس کی اور اس کی جو پرسٹیج ہے اس کے لیے ہم نے ریلی نکالی ہے، اور پوری قوم جو ہے آج عمران خان کی کال پر لبیک کہتی ہوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہم نے آئین بچانا ہے، ہم نے ملک بچانا ہے اور ہم نے اس ملک میں الیکشن کروانے ہیں آئینی طور پر۔
इस रैली का नाम है आइन बचाओ मुल्क बचाओ। जी एग्जैक्टली। ये फैक्ट है कि आइन ही वो वाहिद दस्तावेज है जो रियासत और अवाम के दरमियान एक बॉन्ड का काम करती है, एक दूसरे को आपस में बांध के रखती है। सवाल ये पैदा होता है कि आज आप ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल जरूरत है, एक नैरेटिव है, पाकिस्तान को भी जरूरत है इस पॉलिटिकल नैरेटिव की, जिसको मैं तो जाती तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ। कल जब अल्लाह आपको अगर ताकत देता है तो क्या उस वक्त भी यही नैरेटिव खड़ा नजर आएगा या वक्त के साथ चीजें बदलती हैं? देखें, इस मुल्क को जो थी वो जरूरत थी इस अमर की कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कोई करवाने वाला हो, और इस मुल्क का अलमिया यही रहा है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं रहा और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती रही हैं। जो भी लोग जिनको इन लोगों ने हुकूमत दी, उन लोगों ने अपना माल बनाया और बाहर जाके उन्होंने अपने बच्चों को भी ले गए और वहाँ पर एसेट्स बनाए। इस मुल्क के खून चूस कर जो है उन लोगों ने बाहर माल बनाए, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं था, इंसाफ नहीं था। इमरान खान वो शख्स है जिसने इस कौम को जगाया है, इस कौम को आइन के बारे में बताया है, इस कौम को अवेयरनेस दी है कि तुम जो वोट देते हो तो हमारे वोट के बदले ये ताकत में आते हैं और तुम्हारा ही खून चूस कर। आपको लगता है कि आपकी इस रैली के साथ सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले बेहतर अंदाज में करने में तकवीयत मिलेगी? देखिए, ये बताने का मकसद ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब पर इस वक्त जो प्रेशर उनको दिया जा रहा है, उन पर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है मुख्तलिफ हीले बहानों से, जो पीडीएम कर रही है। कौन कर रहा है प्रेशराइज? आपको मालूम है कि पीडीएम है और नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है, और उसके अलावा जो वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ इनकी जो पार्लियामान जो जाली पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, ये जो है पंजाब की इंटरिम हुकूमत क्या कर रही है, इसका काम था इलेक्शन करवाना। इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है इलेक्शन करवाना और 90 दिन में चले जाना। हमारे सदर परवेज इलाही साहब के घर को जो इन्होंने तोड़ा है, शर्मनाक है। ठीक है जी, इनको 22 अप्रैल तक इनका टेन्योर खत्म हो चुका था। अब ये इलेजिटिमेट है। अब ये जिसको मैं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसका मतलब जो है ये इलेजिटिमेट है। ठीक है जी, तो ये इलेजिटिमेट की गवर्नर्स, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी हुकूमत हम नहीं मानते। पाकिस्तान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट की जरूरत है। एक तरफ मज़ाकरात चलते हैं, दूसरी तरफ मारधाड़ चलती है। एक तरफ मज़ाकरात होते हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों की कोशिश होती है। अचीव क्या करना चाहते हैं? देखो, ये बेसिकली तो ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, और ये इलेक्शन पे इनको पता है कि लोग जो है वो फैसला कर चुके हैं और लोग इस वक्त जो है उनको अवेयरनेस आ चुकी है। और इमरान खान बार बार ये काले क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है कि लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकलें। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, कल आपके पास इक़्तिदार आता है, बदला लेंगे कि नहीं? देखें, हम इस कमिटमेंट के साथ इमरान खान के साथ चल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में आइन की बहाली, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, बदला लेंगे या नहीं? जो कौम का माल होगा वो निकालेंगे। इनके गिरोबानों से भी ज़ाती मामलात में बदला इमरान खान ने कहा मैं इनको माफ कर दूंगा। अल्लाह आपको इज्जत दे। मूव ऑन कर रहे हैं जी। मियां अकरम उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं हल्का 169 से, और जमान पाक इनके हल्के में ये इस टाइम खड़े में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रैली की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं। गोल क्या है? गोल हमारा अदलिया के साथ उसको उसकी यकजहती के लिए और आइन के साथ उसकी कामयाबी के लिए, उसको सपोर्ट के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। सर, मुशर्रफ दौर के बाद आज 2023 में पहली दफा ये नजर आ रहा है कि कोई सियासी जमात जो है वो ये नैरेटिव लेकर चल रही है कि अदलिया को हमारी जरूरत है। क्या वाकई ऐसा है या हमें इस नैरेटिव की? देखें, जिस तरह आइन को सबोटाज किया गया, जिस तरह अदलिया की तौकीर की और तौहीन की गई है, ठीक है, अदलिया की तौहीन की गई और अदलिया के फैसलों को नहीं मान रहे, तो जाहिर बात है अदलिया के पास तो डंडा ढूंढा नहीं है कि वो जाके इम्प्लीमेंट करवाए। उसे तो ऑर्डर देना है, ऑर्डर के बोले इम्प्लीमेंटेशन इन जो है वो झूठों लोगों ने करवाना है। अगर वो नहीं करवाना चाहते, जाहिर बात है कोई मुल्क में होना चाहिए। सर, कंटेम्प्ट से बड़ा डंडा कोई है? कंटेम्प्ट जो है ना वो लगेगी इंशाल्लाह, सब पे लगेगी जो कर रहे हैं। असल में ये भी एक जो मैं ये समझ रहा हूँ, ये भी अदलिया देख रही है कौन कौन जो है ना वो इस मुल्क में किसी कानून के ताबे रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अब मेरे ख्याल में काफी लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं माइट इज राइट वाला कानून हो और जो उनके पास पावर है उसमें फैसला कर सके। आपके नजदीक कौन कौन एक्सपोज हुआ है? पीडीएम में पीटीआई पीपल्स पार्टी होगी एक्सपोज, सारे पीडीएम होगी। सर, पीडीएम होगी ना पूरी, इसके अलावा पीपल पार्टी होगी, उसके अलावा जो पीडीएम में है ना, उसके अलावा बिल्कुल मैं कहता हूँ उसमें कौन सी ऐसी बात हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ से अब है तो मैं बता दें, अब है ही कोई नहीं। एग्जैक्टली सादा सी बात है कि इस मुल्क का या किसी भी जमहूरी मुल्क का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अवाम का और रियासत का, वो आइन के तहत होता है। किसी असूल के अगर आइन नहीं रहेगा, आइन की इकराम नहीं रहेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तबाह हो जाता है, और वो अल्टीमेटली इवेंचुअली रियासत भी बर्बाद होती है, अवाम भी बर्बाद होती है। जब आपको अल्लाह ताकत देगा तो क्या ये चीज उस वक्त भी इम्प्लीमेंट होगी? बिल्कुल होगी। प्रॉब्लम ये है कि सोच भी बदल जाती है ऑपोजिशन में,
اور اقتدار میں جا کے پتہ نہیں کرسی ہوتی ہے یا مسئلہ کیا ہوتا ہے, چیزیں بالکل علیحدہ نظر آنے لگتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں. ہماری گورنمنٹ تھی, عدلیہ نے فیصلہ کیا رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے کہ جی جو قاسم سوری صاحب نے وہ دی ہے ججمنٹ وہ غلط ہے. ہم نے سلام کیا, خان صاحب نے ڈائری اٹھائی, آگے ہم نے 2 حکومتیں قربان کی, الیکشن کی طرف آئے. ہم نے کہا قانون اور آئین کے مطابق کیا آج لگتا ہے کہ وہ قربانی شاید پہلے دے دی تھی, ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل جی, ہم نے صحیح قربانی دی اور اس کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے کہ کون لوگ جو ہے نا اس ملک میں اب جو دوسرے ایسے قربانی کا وقت نا عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دی جائے تو وہ پھر قربانی اس طرح اثر نہیں کرتی. صدقہ تو دیا ہے, تو صدقے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑے مقصد کے لیے آپ اس کو صدقہ سمجھ رہے ہیں, قربانی سمجھ رہے ہیں نا. وہ قربان دو گورنمنٹ یہاں تو کونسلر کی سیٹ کو نہیں چھوڑتا, تو یہاں پر ہم نے 2 اپنی حکومتیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں صدقہ کر دی, قربانی نہیں کی جا سکتی, ہم نے بالکل 2 گھنٹے شاید جلدی کر لی. ہم نے جو ہے نا نعرہ تکبیر کا ہم نے تکبیر پڑھی, عوام کے پاس گئے اور عوام کے پاس عید دا دن چڑھن تو پہلے سے نعرہ لاؤ, تکبیر پڑھو, قربانی نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو ہے وہاں پر ہماری حکومتیں ہیں, ہم آئین کے پاس لوگوں کے پاس جائیں. ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے آئین کے سے پاس جا چکے ہیں, مگر اب کیونکہ آئین کی حکمرانی نہیں ہے, اب جو چاہے وہ کریں, مگر ہمارا مقصد ہے کہ آئین کی حکمرانی, اس لیے آج ہم ریلی بھی نکالیں. اور تھینک یو ویری مچ. ان کا مقصد ہے جی کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور یہی واحد رستہ ہے. کیا میڈم کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ ریلی اور اس کی تیاری, obviously چیف جسٹس صاحب کی تصویر بھی اس پر موجود ہے, خان صاحب کی, آپ کی موجود ہے. سولیڈیرٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. کیا لگتا ہے کہ یہ پروسیجر اس وقت بھی قائم رہے گا جب آپ حکومت میں ہوں گے؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ, خان صاحب نے اپنی پوری پارٹی کو یہ سکھایا ہے, اور ہمیشہ سپرمیسی آف لا, سپرمیسی آف جوڈیشری, اور ہمیشہ آئین کے تحفظ اور آئین کے اسی کا آئین کو اسٹرینتھن کرنا, اوبے کرنا. ہمیشہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہی چیز سکھائی ہے. 90 دن میں الیکشنز نہ ہونا آج کے بعد پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گا, اور آنے والے دنوں میں کیا یہ چیز کوٹ بھی کر کے دوبارہ سے بھی ایسی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے کہ 2023 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ ہونا تو نہیں چاہیے. یہ بہت ہی ایک سنگین قسم کی صورتحال ہے جس سے ہمارا ملک دو چار ہے. ایک طرف فائنینشیل کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس ہے, اور یہ جو آئین کی پامالی ہے یہ تو سب سے ہی الارمنگ. عدالت کا حکم ایونچولی ایک آخری حد سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس اس کو ایک نارمل سی بات, اس کو ڈینائی کرنا, نہ ماننا, نظر انداز کرنا ایک نارمل سی چیز سمجھا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ بالکل غلط ہے. ہم جس طرف جا رہے ہیں ہمارا ملک, ہمیں میرا خیال ہے ہوش ابھی بھی, اگر ہمیں سب کو قوم کو جاگنا چاہیے. لا کی وائلیشن تو کسی بھی صورت, آئین کی وائلیشن تو کسی بھی صورت جو ہے لگتا ہے الیکشنز ہوں گے, ہونے چاہیے. نہیں لگتا ہے کہ الیکشن یہ ہوں تو گے. دیکھیں ڈیلے کر رہے ہیں, انہوں نے تو, ہماری تو پوری تیاری ہے, ان کے پورے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, اور یہ اب لا وائلیٹ کر رہے ہیں. کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں پوری قوم کو کہوں گی کہ آپ چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیں, نکلیں. اس وقت وہ بھی خان صاحب کی طرح تن تنہا انسان ہے جو پاکستان کے آئین کا تحفظ کر رہے ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑا ہے. آپ بھی چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیں, اور سب کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے, اور پاکستان کو اس بحران سے, یہ جو آئینی بحران ہے, وائلیشن آف لا, کانسٹیٹیوشن, اس سے اپنے ملک کو بچائیں, اس میں اپنا کردار ادا کریں. بینگ اے سپریم جج آف سپریم کورٹ, کیا چیف جسٹس صاحب کو واقعی کسی سیاسی جماعت کے پولیٹیکل نیریٹو کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ضرورت نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس ایک بہت ان بائس اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو اویئرنیس دیں. اگر میں ایسے کہوں کہ پی ٹی آئی کو آج اس نیریٹو کی ضرورت ہے اور سوٹ کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں, یہ سوٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اویئرنیس اپنے ورکر کو دینی ہے, اپنی پارٹی کو, اپنے بچوں کو دینی ہے, اپنی پاکستانیوں کو دینی ہے کہ اس وقت کس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور کون صحیح جگہ پہ کھڑا اسٹرگل کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, شبیر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. obviously ایک بڑا کانوائے ہے جو موو کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے ساتھ, جس کا بنیادی مقصد عمران خان صاحب کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر جی, خیریت. گجر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو ریلی نکل رہی ہے, کیا واقعی عدلیہ کو اور چیف جسٹس کو
जरूरत है? जी बिल्कुल अदलिया की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यकजहती के लिए कि जो दबाव ये बिला वजह डाल रहे हैं, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं, उसमें बिला वजह प्रेशर डालना ये गलत है। इसलिए हम यकजहती कर रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ और आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अगर ये इलेक्शन बर वक्त हो जाते जी। और बर वक्त इलेक्शन की तैयारी हो जाती और किसी और मामले में आला अदलिया को किसी ऐसी सिचुएशन का सामना होता, जी तो उस सिचुएशन में भी क्या पीटीआई निकलती? जी पीटीआई बिल्कुल इंशाल्लाह निकलती, क्यों नहीं निकलती। पीटीआई आइन और कानून के साथ है, हमेशा पीटीआई ने आइन और कानून की पासदारी की है, आज तक आइन और कानून से हट के पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। सुना है कि आपकी पंजाब में नहीं मरकज में अब जरूरत है, इज दैट ट्रू? ये तो मेरे लीडर को पता है, ये सिर्फ अभी इत्तला है? ये तो मेरे लीडर को पता है मेरी कहाँ जरूरत है, मेरी पंजाब में जरूरत है, मेरी वफाक में जरूरत है, या मेरे बलदियाती निज़ाम में जरूरत है, या एज ए वर्कर मैंने काम करना, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। जब टिकट नहीं मिला और आपने ऑब्वियसली उसके लिए अप्लाई भी किया था, बहुत सारे लोग नाराज हुए, कहीं एक लम्हे के लिए अपने दिल में भी ऐसी बात आई? बिल्कुल एक सेकंड के भी लिए नहीं आई। पहले भी मेरे लीडर का आसान है कि मुझे टिकट दी और मैंने आपने बड़े मुश्किल वक्त में इलेक्शन निकाला था। बड़े मुश्किल वक्त में, बड़ा मुश्किल वक्त था। अपने मुनहरिफ उम्मीदवारों के खिलाफ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पूरे लाहौर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा लीड थी मेरी, 14,500। कितने बंदे आए लेकर आए हैं? आज मैंने देख लिया आपके सामने, सबसे अंदाजन आपसे पूछ रहे हैं। मेरे कोई 1200-1300 बंदा है मेरे साथ। अच्छा जी। और ये एंड तक जाएगा? इंशाल्लाह एंड तक जाएगा जी। मिसाल के तौर पर खान साहब आपको टिकट मरकज का नहीं देते? जी अभी तो पंजाब में तो आपको नहीं मिला। भाईजान टिकट का मसला ही कोई नहीं है, हम तो पाकिस्तान के लिए निकले हैं, पाकिस्तान की ये आगे मुस्तकबिल के लिए निकले हैं, हम गरीब के लिए निकले हैं, हम आइन और कानून के लिए निकले हैं, मैं अपने लिए नहीं निकला, अपने टिकट के लिए नहीं निकला। अच्छा, बहुत सारे उम्मीदवार नाराज भी हुए क्योंकि जमान पार्क में एक जमे गफीर हुआ करता था। जब टिकट्स अनाउंस नहीं हुए थे, लोग हर शख्स ख्वाहिश कर रहा था, एक एक हल्के से 4-4, 6-6 उम्मीदवार थे। टिकट्स अनाउंस होते ही जमान पार्क में एक लम्हे के लिए सन्नाटा हो गया। उस वक्त देखकर दिल को कुछ हुआ था या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सन्नाटा हो गया था, अभी भी लोग ये तो अभी तो बेहतरीन क्राउड है, लेकिन मैं बात करूं वेरी नेक्स्ट डे। 1 मई की जो रैली निकली है वो भी हमारी बहुत बड़ी रैली थी। आज भी जो देखे, जो सहारे यकजहती के लिए चीफ जस्टिस के साथ और आइन कानून के साथ हमने पासदारी की करते हुए रैली निकाली, आज भी सबसे बड़ी रैली है। तो मेरा ख्याल लोग खड़े हैं। कोई मैसेज देना चाहें कॉमन पब्लिक को? मैं नहीं कह रहा किसी और को देना है, कॉमन पब्लिक को जो रोटी कपड़ा ढूंढ रहा है, तालीम ढूंढ रहा है, दवाई ढूंढ रहा है और उसको कहीं से उम्मीद नहीं मिल रही। मैं अवाम को यही कहना चाहता हूँ, खास तौर पे गरीब अवाम को, किसान को, मजदूर को, डॉक्टर को, जो भी तबका है, अगर एक लीडर है, वाहिद लीडर है, पूरी उम्मे मुसलमानों में लीडर है, तो वो इमरान खान है। इमरान खान का साथ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे निकलेगा, तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, वो वक्त दूर नहीं जब इंशाल्लाह हम तरक्की की राह पे गामजन। आखिरी सवाल, शबीर गुजर साहब, सुना है अगली हुकूमत जिसको मिलेगी ख्वार होगा। देखिए मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किल तो है, तो वर्कर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे जिसको पहले भी आप डिलीवर नहीं कर सके? इंशाल्लाह देखें, हम कोरोना के दौर में भी हमने सर कोरोना गुजर गया, आपका सेहत कार्ड भी मान लिया और फैक्ट है, मैं उसका इस वक्त मैं बताता हूँ कि आपको बहुत अच्छा प्लान था, इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल थे। जी। सवाल ये है कि आपका वर्कर अब चाहता है कि आसानी हो, दोबारा से इम्तिहान काटना पड़ेगा आवाम को। देखिए मुश्किलें काटनी पड़ती है, मुश्किल काट के फिर ही कौम बनती है। अगर कहना इजी तो कोई भी नहीं, हमें मुश्किलें तो काटनी पड़ेगी। अगर हमें इख्तियार मिलता है तो इतना नहीं कि हम आते ही सारा कुछ चेंज कर देंगे, टाइम लगेगा। मोर पावर टू यू जी, थैंक यू वेरी मच। मेयर शराफत साहब हमारे साथ मौजूद है और ऑब्वियसली ही इज द पार्ट ऑफ द रैली। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। सर टिकट हो गए और ऑब्वियसली आप भी टिकट होल्डर हैं। ये रैली जो अदलिया की मोहब्बत में निकाली जा रही है और ऑब्वियसली एक सॉलिडेरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस के साथ। मेरा सादा सा सवाल है कि क्या अब हमारे हालात ये हो गए हैं कि हमारे एक सुपीरियर तरीन जज को, मोस्ट सुपीरियर कोर्ट के सुपीरियर जज को अब पॉलिटिकल जमातों की जरूरत पड़ गई है कि वो उनके हक में रैलियां निकालें? क्या बदकिस्मती यहाँ तक आ गई है? बिल्कुल यहाँ तक पहुँच चुकी है। जब पाकिस्तान का सजा याफ्ता या जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपए के केसेस हों, ऐसे लोग वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएं, तो फिर ऐसी अदालतों को हमारी पाकिस्तानी अवाम की मदद की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। देखें, अगर ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल ना कर रहे होते तो अब तक मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे नाअहल हो चुके होते। अब हमें ये डर है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग कहीं एविडेंट है? आजकल आपको पता है हर बंदे की इनके पास वीडियो है,
हमें लगता है कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिलेटिव की कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग इन्होंने वायरल की, हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस यानी उनकी प्राइवेट लाइफ में लोगों के इंटरवीन किया जाता है। बिल्कुल, ये लोग ब्लैकमेलर हैं, इनके सहूलतकार भी ब्लैकमेलर हैं। ये जो ऑडियोज आ रही थी पीटीआई के दौरे हुकूमत में, वो कौन ला रहा है? यही ला रहे थे जो आज ला रहे हैं, अभी यही ला रहे थे, अभी यही ला उस रहे हैं। वक्त आप लोगों को इनके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए था कि भाई ये काम गलत है किसी की बहुत सारी- निजी जिंदगी में। मेरा मजहब पता है क्या कहते हैं? मेरा मजहब कहता है कि अगर कोई किसी के घर में झांकता है उसकी इजाजत के बगैर, वो पत्थर मारकर उसकी आंख निकाल देता है तो उस पर कोई गुनाह और जुर्म नहीं है। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो ऑलरेडी इमरान खान साहब ने कह भी दी हाँ। कि मुझे ये लगता था कि ऐसे नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब खान साहब की पिक्चर भी क्लियर होगी, पाकिस्तानी अवाम की पिक्चर भी क्लियर होगी। खान साहब कहते हैं कि हो सकता है उनकी भी कुछ, और उनको वसूख भी है इस पर कि उनकी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स इनके पास है। फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें मिलाइन करने की कोशिश भी हो सकती है ऐसे ही ताकि ग्राफ नीचे, क्योंकि इस टाइम मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ द कंट्री इज पीटीआई, नो डाउट। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारे ये जो दोस्त हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं और निकालते हैं, मैं समझता हूँ इनके पास अभी काम ही कोई नहीं है इस काम के सिवा। अगर काम होता तो जगह जगह ये दहशत गर्दी के वकूए ना होते, ये वाकयात ना आए। देखिए, जब हर बंदा अपने हलफ की पासदारी करेगा, अपने काम से काम रखेगा, तो मेरा ख्याल है कि जो उस बंदे की जो डोमेन है, उस डोमेन के अंदर को मसले मसाइल जो आ रहे हैं, जगह जगह दहशत गर्दी हो रही है, जगह जगह धमाके हो रहे हैं, कदर गारत हो रही है। ये चंद दिन पहले हमारे वहाँ से हमारे Unfortunate शहीद हो गए। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपने अपने काम से काम रखना चाहिए। Thank you very much, रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास एक्सेस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की भी रिकॉर्डिंग पे मोबाइल लगा दें आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जीते रहे। अली हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी नामजद उम्मीदवार है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? रैली निकाल रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद है सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने चीफ जस्टिस साहब को मोटिवेट करना कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान आपके साथ है। क्या वाकई उनको हमारी और आपकी मोटिवेशन की जरूरत है? सर बिल्कुल है, क्योंकि हमारे इदारे बहुत मजबूत हैं और हमारे चीफ जस्टिस को पूरी दुनिया में देख रहे सेपरेशन ऑफ पावर होती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये रहेगी, कोई भी इदारा प्रेशर नहीं डाल सकता चीफ जस्टिस पर। क्या हाल है? बड़ा क्राउड इकट्ठा किया माशाल्लाह। अच्छा, मुल्क बचाओ आइन बचाओ रैली है, क्या वाकई हमारे ये हालात आ गए हैं कि अब अदलिया के फैसलों को इंडोर्स करने के लिए आवाम को निकलना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि आइन की पासदारी हो और इंसाफ का तकाजा हो। करामत खोखर साहब इस रैली में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आइन की बहाली के लिए इंशाल्लाह ये रैली जा रही है। इंशाल्लाह कानून की बलदस्ती होगी तो मुल्क बचेगा। इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये रैली बहुत बड़ी रैली है। इंशाल्लाह अल्लाह हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं और सारी कौम उनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह कानून की बलदस्ती के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। खोखर साहब, इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो मुल्क बचेगा। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और 14 तारीख को जो डेडलाइन चीफ जस्टिस दी है उसके बाद इंशाल्लाह 14 को इलेक्शन, हमारा मिशन है ये 14 को इलेक्शन होंगे। ये मॉडर्न गवर्नमेंट खत्म होगी और इंशाल्लाह कानून की बलदस्ती। अगर वफाक ने पैसे ही ना दिए और इलेक्शन कमीशन ना करवा सका तो फिर क्या करेंगे? वफाक अगर पैसे ना देगा तो इंशाल्लाह इलेक्शन तो होंगे। कैसे? सिर्फ उन्होंने ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, उनकी मौत है, वो कोशिश करते हैं इलेक्शन ना हो और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश इलेक्शन हो
اور मुल्क में खुशहाली हो। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है तो फिर क्या पल्ले बचेगा पीडीएम के? आइन की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस साहब हर हरबा इस्तेमाल करके, आइन तो है तो मुल्क है, आइन को हमने आइन की पासदारी के लिए हम आवाम सारी की सारी पाकिस्तान सारा का सारा आइन के साथ खड़ा है, जो चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। गरीब बंदा कुर्बानी दे रहा है, क्या रश्ते भी देने के लिए तैयार है? ये सब इंशाल्लाह रईस भी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की कौम एक पेज पे खड़ी है, सारी कौम यकजा है और सारी कौम ही गरीब और अमीर सब एक जाके खड़े हैं और इंशाल्लाह मुल्क की आज़ादी के लिए, इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए ये अपनी हर कुर्बानी के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स जो हैं उनके साथ आज के प्रोग्राम में हमने बात की, जो इस रैली में शामिल हैं, और मकसद ये था कि इस रैली की एक जानिब तो स्ट्रेंथ दिखाई जाए, दूसरी जानिब जो नैरेटिव है उसकी वजह यह है कि ये तो तय है कि इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।